A very good evening, all of you. Now, in today's lecture, we will be covering your Unit 2, that is investment decisions. Okay, so under investment decision, I meant to say, segment or the first unit is your cost of capital. Fine. So, what exactly is the cost of capital? What does it signify? What does it include? What is the relevance? Okay, we will be discussing in detail. Now, coming to the first Okay. Now coming to the first slide. Now see what exactly cost of capital means. Fine. So now the slide says it refers as the rate of return the firm requires from investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. Now remember, any investment that is done by an organization, by group of organization or by an individual, okay, first of all, they always see what is the rate of return that they are receiving, and second is the return that they are receiving, whether it helps to increase their value or not. Okay, so if I'm a firm, the value of my firm, if I'm an individual, then whether it is able to increase my benefit. Okay, the level of benefit or the amount of benefit is more than the cost incurred in that investment. Fine. So the return that we receive over an investment, we call it as the cost of capital. Fine. Now remember, cost of capital is something the meaning or the perspective changes from person to person. Okay, for example, if I'm investing, okay, I will look for my return over the investment. Fine. Now, but let it be the company from where I mean to say in whose company I'm investing. Okay. Now for them, the cost will be what? I mean to say the charges, or you can say the amount incurred by them, yes or no, to give away a particular project. Fine. So now the investment that is done by us, for that investment, that company must have involved a cost too. Fine. So the perspective of meaning of the cost of capital changes. Now what are the characteristics or the features of the cost of capital? First is it is a rate of return, not a cost. Okay, normally when we hear cost of capital, it comes to our mind that it is a cost. Fine. Now, cost means, of course, it is a burden in the minds of the company. But remember, it is not a cost, it is a return. Okay, return means it is in form of benefit. Now, second is it is always calculated on the basis of the actual cost of different components of capital. Fine. Now, different components of capital means it can be debt, it can be equity, it can be preference, it can be retained earnings. Okay, it can be in any form of capital. Fine. So, cost of capital is basically calculated on the actual cost involved in the different capital component. Fine. Next is it also represents minimum rate of return that will result in at least maintaining the value of its equity shares. Fine. So that means what? We have to go for acquisition investment, okay, in such a manner that our rate of return will not affect the value of our equity shares. Okay, that is what the point says, that the investment we do should never affect the value or net worth of the company as well as the value of the equity shares. Next is it is related to long term funds. Obviously, when we are talking of the components of capital, we are saying it includes your debt, equity, preference, retained earnings. So these all are your funds and long term funds. Fine. So cost of capital is basically related to the long term funds. Now, how is it represented or denoted? It is K. K means your cost of capital. And when we represent a cost of equity capital, it is K to the base E. If it is debt, then K to the base D. And if it is preference, then K to the base P. Fine. And it is equal to your RO plus B plus F. Okay. Now, what is this RO, B, and F? We will discuss it. Here it comes. Okay. Now RO means it is the risk, zero risk level. Okay, B means it is the business risk, and F means the financial risk. Okay, now what are these three? Now these three are your components of the cost of capital. First is return at the zero risk level.
says that it is the expected rate of return when a project involves no risk, whether it is business or financial. That means what? ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे एक्विजिशन के टाइम पे आपको कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा. द बेस्ट एग्जांपल विल बी इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, आप जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे रिस्क बहुत नेग्लिजिबल होता है, इनफैक्ट जीरो भी बोला जा सकता है. ठीक है, जीरो प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज योर प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क. Now, when I say premium for business risk, it is probability wherein a firm will not be able to operate successfully in the market. Fine. इसका मतलब क्या है? Where the business or where the firm, the company is not able to operate successfully in the market, okay, for that a premium is being charged upon the investment. Fine. So greater the risk involved, higher will be the cost of the capital. जाहिर सी बात है, जिस इन्वेस्टमेंट में, जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, अगर वो बहुत ही रिस्की है, फाइन, in that case what happens? Cost of capital will naturally be higher because as it is said, higher the risk, higher will be the gain. और यहाँ पे gain का मतलब क्या हो जा रहा है? The return that we are receiving, obviously. So when we are putting in the money at a risky venture, we expect a higher return. Now, premium for financial risk. Now, what does this mean? It refers to the risk on account of pattern of capital structure. Fine. It means when we don't arrange the capital structure in an optimal way, in a systematic way, there the financial risk crops up. Fine. And when the financial risk crops up, okay, for that a premium is being charged or a premium is being paid. Fine. So now, how this financial risk is being witnessed, or how come this financial risk comes, in which way? It is said that where the debt component or the debt content in the company's financial structure or capital structure is higher, riskier will be the firm. जाहिर सी बात है, जो कंपनी में डेप्ट ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? आप ज़्यादा थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ले रहे हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर गिर रहा है. इन दैट केस क्या होता है? आपका फॉर्म रिस्कियर बन जाता है. एंड व्हेन द फॉर्म इज गेटिंग रिस्कियर, of course the premium will also be higher. Fine. The best example could be, for example, both of your parents have crossed 60, and if you want to make an LIC policy for your parents, the premium is very high. Why? Because the risk amount is higher. Fine. क्योंकि the amount, or you can say the period of I mean to say longevity in their life is very limited. In that case, risk कहाँ पे आ जाता है? Risk कंपनी के ऊपर आता है, द LIC company. That's why they charge a higher premium, because they are taking higher risk. Fine. So these all are your components of cost of capital. Now coming to your next is, what is the relevance or importance of the cost of capital? Fine. Now here you see, it is the basis of appraising a new capital expenditure proposal. ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका आ जाता है, इट स्पेसिफाइज, इट हेल्प्स द इन्वेस्टर, इट हेल्प्स द फर्म, द कंपनी टू कैलकुलेट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट वी आर रिसीविंग. जिसके चलते क्या होता है, कोई भी नया कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अगर करते हैं तो उसको परखने के लिए, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज, इट रेज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, as a result it optimizes the risk and cost. Obviously जब आप डिफरेंट सोर्सेज से आप फंड्स अरेंज करते हैं, उसके चलते क्या होता है, आपका रिस्क ऑप्टिमाइज हो जाता है, रिस्क आपका बैलेंस हो जाता है. एज ए रिजल्ट द कॉस्ट इज ऑल्सो बैलेंस. ठीक है, कॉस्ट का बर्डन, रिस्क का बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं आता, इट गेट्स डाइवर्सिफाइड. Next is, it is the basis for evaluating the financial performance of the top management. Obviously, where you manage your capital, where you manage your finances, the performance will automatically be balanced too. Next is, it helps in formulating appropriate dividend policy. Fine. Now, appropriate dividend policy में मदद कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, जो डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, डेप्ट में कितना खर्चा होता है, इक्विटी में, प्रेफरेंस में कितना, तो उसके चलते क्या हो जाता है, यू मेक ए ट्रैक. फाइन. आप आपके पास एक ट्रैक रहता है, आप आराम से
जान आई मीन टू से जान पाएंगे, आप जान पाएंगे कि हाँ इतना इतना मेरा खर्चा हो रहा है, जिसके चलते दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड दैट येस इन दिस ईयर और इन द कमिंग ईयर will I be able to announce dividend or will I have to retain? Fine, so that helps you. Lastly, it helps the organization in developing an appropriate working capital policy. Of course, with the help of the cost, with the help of the expected return, the minimum return, I can decide what should be my appropriate amount of the working capital needed. फाइन, कितना मेरा खर्चा होगा, कितना मुझे रखना है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए. फाइन, सो दैट नेचुरली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड appropriately. Fine. Now, next is classification of the cost of capital. Now, when I say okay, are the slides visible to everyone? Yes, ma'am. Everyone? Okay, yesterday one of you faced a problem. That's why I'm asking again and again. Is it visible? Am I Yes, ma'am. It is clear? visible, ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you. Am I clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Thank you. Fine. So now next is your classification of cost of capital. Now under this, the first is your explicit cost and implicit cost. Now, what is your explicit cost? Basically, it is the discount rate that equates the present value of the funds received with the present value of the expected cash outflows. दैट मीन्स इन वेरी सिंपल टर्म्स वो कौन सा डिस्काउंट रेट है, वो कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, वो कौन सा पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जिसमें कि आप जो फंड्स रिसीव करते हैं, फंड्स रिसीव मीन्स इन सिंपल टर्म्स द कैश इनफ्लोस. फाइन, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना पैसा लगाया है और इन रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, समझ रहे हैं. तो कौन सा ऐसा रेट है जिसमें कि ये दोनों आपका बराबर होके निकलता है. फाइन, तो उसी रेट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट करके बोलते हैं. वेरी सिंपल. फाइन. नेक्स्ट आपका है इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका क्या है? बेसिकली ये आप उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा बार बार +2 से लेके ग्रेजुएशन तक. फाइन. सो नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स इट इज द रिटर्न एसोसिएटेड विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्म, which is foregone if the project presently under consideration by the firm would have been accepted. फाइन, इसका मतलब क्या है? आप जो सैक्रिफाइस करते हैं, फाइन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फाइन, सो कौन सा रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड है, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. Next is your average and the marginal cost. Now, when I say average cost, it is the weighted average cost of each component of fund. इसका मतलब क्या है? ठीक है, जब हर कंपोनेंट ऑफ फंड को मतलब आपका डेप्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स है या नहीं, इन सब को मिला के जब आप एवरेज आप निकालते हैं, हम उसको एवरेज कॉस्ट करके बोलेंगे. ठीक है. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट होता है जब टोटल फंड्स में, ठीक है, आपका चेंज होता है जब आप कोई नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं. समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई भी नया इन्वेस्टमेंट के चलते आपका जो प्रेजेंट फंड है उसके ऊपर अगर इम्पैक्ट गिरता है वो मार्जिनल होता है. समझ रहे हैं? तो अभी वो अगर कॉस्ट हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट है, अगर रेवेन्यू है तो मार्जिनल रेवेन्यू है. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है, जब हमारा टोटल कॉस्ट इम्पैक्ट होता है, दैट मीन्स व्हेन द टोटल कॉस्ट इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय इन्वेस्टिंग इन ए न्यू फंड और बाय रेजिंग ए न्यू फंड, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज future cost and historical cost. Now, future cost is what? Just a second. Okay. Now, future cost is what? It is the expected cost of funds to finance the project is ascertained with the help of the historical cost. Fine. सो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर कॉस्ट मीन्स फ्यूचर में कितना मेरे को खर्चा हो सकता है वो आप आज के डेट पे एस्टिमेट करते हैं. और वो एस्टिमेट कैसे करते हैं आप? आपके पास्ट रिकॉर्ड्स के चलते. ठीक है, पास्ट का जो कॉस्ट आपका इनकर आपने कर रखा है, ठीक है, उसको आप बेस लेते हैं तो कंप्यूट द कॉस्ट इन द फ्यूचर टाइम्स टू कम. फाइन. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट है जो आपने ऑलरेडी इनकर कर चुका है, जो आप ऑलरेडी I mean to say you have I mean to say
एक्सपेडिट और यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, फाइन, आपने ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर कर चुका है हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे. द लास्ट इज योर स्पेसिफिक एंड कंपोजिट कॉस्ट. द स्पेसिफिक कॉस्ट मीन्स the cost of debt is a specific cost of equity is a specific cost. That means what is the cost of the individual component of capital. Fine, debt के लिए कितना आपका cost हुआ है, equity के लिए कितना आपका हुआ है, समझ रहे हैं. What we expect the return from equity, we call it as a specific cost. Fine. What are the charges because of issuing the debenture, that is a specific cost. ठीक है. कंबाइंड कॉस्ट क्या है, जाहिर सी बात है जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एवरेज कॉस्ट हम जो बोले थे वही आपका कंपोजिट कॉस्ट भी बोला जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज your four components of capital. Okay, now coming to the first component, that is long term debt or debentures. Fine. Now अभी आपका long term debt और debentures का conceptual background पे नहीं जाते हैं because that has already been discussed in your unit 1-2 that was under your block 1. ठीक है. तो सीधा इस पे आएंगे आपका computational part पे. यहाँ पे देखिए एक जब डिबेंचर्स पे हम डील कर रहे होते हैं, डिबेंचर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज योर इरिडीमेबल, सेकंड इज योर रिडीमेबल. फाइन. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग इरिडीमेबल, वहाँ पे आपका बिफोर टैक्स होता है, एक आफ्टर टैक्स होता है. ठीक है. जब बिफोर टैक्स है तो वहाँ पे देखिए इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन जब आफ्टर टैक्स होता है वहाँ पे 1 माइनस टैक्स आपका इंटरेस्ट पर लागू होता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए, a company has issued 12% debentures of rupees 1 lakh. The company pays tax at 40%. Now calculate the cost of debt before and after tax assuming the debentures are perpetual. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए टैक्स आपका दिया गया है, डिबेंचर्स का वैल्यू दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है. यहाँ पे बोला है कि आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाले एट पार, एट 10% डिस्काउंट या फिर 10% प्रीमियम पे, जहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आपका 2% है प्रोसीड्स पे. ठीक है. अभी ये जो प्रोसीड्स है ये बेसिकली आपका सेल प्रोसीड्स हैं. फाइन. आई मीन टू से जो इश्यू आप करते हैं, जो खर्चा हो रखा है, उसमें जो फ्लोटेशन कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होता है, लीगल चार्जेस और सम स्टैम्प चार्जेस, उस तरह का. ठीक है. नाउ व्हेन इश्यूड एट पार में क्या होता है, आपका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है. तो आपका फेस वैल्यू क्या है, 1 लाख है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 12% 1 लाख पे, तो 12,000 आया. नेट प्रोसीड्स कैसे आएगा, आप 1 लाख पे आपको माइनस करना है कितना माइनस करना है, %12 आपका सॉरी आपका फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 2% है. समझ रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा है या नहीं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम दे रहा है. हाँ, तो 2000 आपका आया. ठीक है. तो 2000 आप अगर डिडक्ट करेंगे तो आपका 98,000 आ रहा है. समझ रहे हैं. तो ये आपका बिफोर टैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका निकला 0.1224, जो कि 12% आपका हुआ. अभी आफ्टर टैक्स क्या है, वो जो इंटरेस्ट 12,000 है उसके ऊपर 1 माइनस टैक्स आपका होगा. ठीक है. टैक्स कितना है, 40%. सो उस हिसाब से कितना चार्ज होगा, 0.6 आपका. ठीक है. सो आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट आया 7.34%. अगर बिफोर टैक्स होता तो 12%. व्हेन इश्यूड एट डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट में क्या हो जा रहा है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे, आफ्टर टैक्स का निकालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 12,000 इंटरेस्ट तो इंटैक्ट रहेगा ही. यहाँ पे देखिए 88,200 है. ठीक है. अभी ये 88,200 कैसे आया, हमेशा याद रखिए पहले डिस्काउंट आपका डिडक्ट किया जाएगा फेस वैल्यू से, फिर जो रिजल्टेंट फिगर आपका आएगा. ठीक है. उस पे हम लोग नेट सॉरी आपका जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो चार्ज होगा. समझ रहे हैं. तो आपका हाँ, एक सेकेंड. सो आपका 10% 1 लाख पे चार्ज होके आपका 90,000 आया. ठीक है. फिर 90,000 में आपका 2% होने से 1,800 आ रहा है. ठीक है. सो 90,000 माइनस 1,800. ठीक है.
तो आपका निकला कितना 88,200, ठीक है। सो आपका बिफोर टैक्स आया 13.61% और आफ्टर टैक्स आपका 8.17%, ठीक है। और जब प्रीमियम का बात आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, आपको पहले प्रीमियम फेस वैल्यू पे ऐड करना है, फिर उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट डिडक्ट करना है टोटल वैल्यू से, ठीक है। प्रीमियम ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर आपको 2% माइनस करना है, ठीक है। अभी देखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। अभी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स में देखिए ये आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी। आरवी क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू है, एनपी है आपका नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन लिए हैं, देखिए 2 lakh debentures of 250 each, which are issued at 5% discount. The coupon rate is 15%. Flotation cost is 5% of the face value. The redemption will be after 8 years at a premium of 5%. The tax rate is 40%. Determine the true cost of debt. देखिए बहुत सारी चीजें एक ही बार में दे दिया गया है क्वेश्चन में। पहले है डिबेंचर्स का 2 लाख है, जो कि 250 पर यूनिट कॉस्ट है। इश्यू किया गया है 5% डिस्काउंट पे। कूपन रेट है 15%, मतलब आपका ये इंटरेस्ट है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे वो क्लैरिफाई कर दिया है कि फेस वैल्यू पे ही आपको 5% लेना है, ठीक है। तो आइदर अगर हम 2 लाख 2 लाख तो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, वो नहीं, आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है 250, तो 250 के ऊपर ही फ्लोटेशन कॉस्ट आपका चार्ज होगा। और रिडेम्पशन का पीरियड आपका कितना है? 8 साल का है। और रिडेम्पशन जो होगा आपका वो 5% पे होगा, ठीक है। वो 5% प्रीमियम है। टैक्स रेट कितना है? 40%। अभी कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, तो फॉर्मूला पे जाते हैं। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? जाहिर सी बात है, आपका इंटरेस्ट कितना है? 15% है, तो 15% किस पे? 250 पे। तो आपका निकला कितना? 37.5। फाइन। अभी 1 माइनस टैक्स तो ये तो मालूम है ही। अभी जाते हैं रिडीमेबल वैल्यू पे। अभी रिडीमेबल वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पे बोला है रिडीम होगा प्रीमियम 5% पे, तो हम लोगों का फेस वैल्यू कितना है? 250 है, प्लस 25% आपका क्या होगा? ओके सॉरी रॉन्गली टाइप। ओके सॉरी, 5% गलती से हो गया। ओके हाँ, सो पार वैल्यू पे आपका 5% ऐड होगा, ठीक है। तो जिसके चलते फाइनल वैल्यू कितना निकला? 262.5, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकल गया, टैक्स ऑलरेडी है, रिडेम्पशन पीरियड मालूम है, रिडीमेबल वैल्यू निकल गया। अभी लास्ट बचा क्या? नेट प्रोसीड्स। अभी नेट प्रोसीड्स कैसे निकलना है? देखिए क्वेश्चन में पहले ही सेंटेंस में दे दिया है कि जो इश्यू हुआ है डिबेंचर्स डिस्काउंट पे हुआ है, वो भी 5% का, ठीक है। इसका मतलब 250 से हम लोगों को 5% निकाल के बाहर रखना है या नहीं? तो फेस वैल्यू कितना है? 250 है। डिस्काउंट वो बोला है 5%, मतलब 5% फेस वैल्यू का, ठीक है। तो कितना निकला आपका? 5% आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वो बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, ठीक है। तो जब हम लोग नेट प्रोसीड्स निकालेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी आना ही है, समझ रहे हैं। रिडीमेबल वैल्यू पे देखिए बोल दे रहे हैं व्हेन वी आर टेकिंग द रिडीमेबल वैल्यू प्रीमियम डिस्काउंट एडजस्ट होगा ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। यहाँ पे रिडेम्पशन एट प्रीमियम करके बोला है। अगर खाली बोलते रिडेम्पशन इज डन आफ्टर 8 ईयर्स, तो मान लीजिए रिडेम्पशन वैल्यू वही आपका 250 ही रहेगा, समझ रहे हैं, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसमें वो प्रीमियम मेंशन कर रखा है, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग नेट प्रोसीड्स निकालते हैं, ठीक है, नेट प्रोसीड्स में क्या होता है? फेस वैल्यू से फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम, डिस्काउंट जो भी इश्यू के टाइम पे हुआ है उसको सब आपको एडजस्ट करना है। सो फ्लोटेशन कॉस्ट काटने के बाद आपका देखिए फाइनल वैल्यू निकला कितना? 225। सब वैल्यूज आ गया, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड्स, इंटरेस्ट, टैक्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, सब आ गया। तो सब डालने के बाद फाइनल वैल्यू कितना आया? 11.15%। तो ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ डेट which is redeemed after a period of 8 years. Fine.
अभी नेक्स्ट आपका देखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल में भी आपका रिडीमेबल और इरिडीमेबल है। जब इरिडीमेबल का बात उठता है, सो वेरी सिंपल, इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स। सेम लॉजिक, सेम प्रिंसिपल्स आपका लागू होता है इसमें भी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, 12% irredeemable preference share of 100 each is issued by a company where the flotation cost is 5% of the issue price. Estimate the cost of preference share capital at par, at premium and at discount. Fine. Okay, so यहाँ पे 10% लिखना हम भूल गए, एक्चुअली इट इज 10%, ठीक है। Now see, प्रीमियम 10% एंड डिस्काउंट 10% पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जब इश्यूड एट पार आपका होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपका सेम ही रहेगा 12% 100 रुपए के ऊपर, तो आपका 12 वो तो कांस्टेंट है हर केस में, पार में भी, डिस्काउंट में भी, प्रीमियम में भी। नेट प्रोसीड्स में ही आपका अंतर आएगा। नेट प्रोसीड्स में जब पार आपका होता है तो 100 कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो 1 माइनस 0.05 आपका दिया गया है, ये आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है। तो उसी के ऊपर ही आपका फ्लोटेशन कॉस्ट गिरेगा। अभी 12/90 डिस्काउंट के केस में आप देखिए, 10% अगर डिस्काउंट है तो उस हिसाब से 90 आपका निकला। व्हेन इश्यूड एट प्रीमियम अगर करेंगे तो 100 + 10, सो 110, ठीक है। और आपका फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू प्राइस के ऊपर होगा, तो वो आपका नेट प्रोसीड्स जो है उसी में ही आपको करना है, ठीक है। तो 12/95 होके 12.63 आया। जब डिस्काउंट हुआ तो थोड़ा सा बढ़ गया, जब प्रीमियम हुआ तो आप देखिए आपका कॉस्ट जो है थोड़ा सा कम हो गया, समझ रहे हैं। तो वो आपका डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नाउ नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। अभी रिडीमेबल में क्या है, वही फॉर्मूला है, लेकिन हम डिबेंचर्स में क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस टैक्स कर रहे थे, लेकिन उसमें वही हटके प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा न्यूमरेटर में, समझ रहे हैं। बाद बाकी चीजें वही आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए 30,000 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each are redeemable after 10 years. Flotation cost is 2% of the sale proceeds. Calculate the cost of preference share capital. ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 14% ऑफ 100 मतलब 14 रुपीज। नेट प्रोसीड्स कितना आएगा, 100 माइनस 2% ऑफ 100, 2% ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो 98 आया। आपका रिडीमेबल पीरियड कितना है, 10 साल दिया है क्वेश्चन में, और रिडीमेबल वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि प्रेफरेंस शेयर इज टू बी इश्यूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना आया, 14% आया, ठीक है, 14.34। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेटेड स्ट्रीम ऑफ नेट कैपिटल आउटलेस डिजायर्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर। फाइन, इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर के चलते हम लोगों को जो कैपिटल आउटलेस होता है, ठीक है, तो उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होने का संभावना है, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और बोला जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है अर्निंग बाय प्राइस, ठीक है, जिसमें कि आप करेंट अर्निंग पर शेयर बाय करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर करके वैल्यू निकालते हैं, मतलब कॉस्ट निकाला जाता है। दूसरा है अर्निंग प्राइस रेशियो प्लस ग्रोथ रेट, जिसमें कि फॉर्मूला देखिए ईओ विथ मल्टीप्लाइड विथ 1 + बी। तो ये जो बी आपका है ये ग्रोथ रेट है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अनुसार आपका दिया गया है, होल डिवाइडेड बाय द पी, ठीक है। दूसरा है डिविडेंड बाय प्राइस, डिविडेंड मतलब द डिविडेंड पर शेयर, पी मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। दूसरा है आपका डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो गया D1/KE माइनस जी, या फिर अगर हम KE अगर लेंगे कॉस्ट, ठीक है, तो वो होता है डिविडेंड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। दूसरा है रियलाइज्ड यील्ड मेथड, ठीक है, तो रियलाइज्ड यील्ड सिक्योरिटीज बीटा मेथड। तो रियलाइज्ड यील्ड में क्या होता है, हम लोग रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोगों को रियलाइज हुआ है इन रिटर्न इन एक्चुअल टर्म्स। फाइन, तो इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज बीटा मेथड, ठीक है। अभी सिक्योरिटीज, जस्ट अ सेकेंड,
अभी सिक्योरिटीज बीटा मेथड क्या बोलता है, ठीक है, बीटा मतलब वो आपका एक क्या बोलते हैं, a certain degree of risk which is involved, okay, which is computed in terms of coefficient, fine। तो यहाँ पे क्या है, ये देखा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, सो उसमें आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, आप उसको मेजर करते हैं, आप निकालते हैं, ठीक है, कि हाँ इस इन्वेस्टमेंट पे इतना रिस्क इन्वॉल्व है, एंड दैट इज टर्म्ड और रिफर्ड एज योर बीटा, फाइन। सो वो जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है उसको बीटा करके बोला जाता है, उसका अलग से कंप्यूटेशन है, ठीक है, तो वो इट्स ए बिग आई मीन टू से टर्म, ठीक है, उसका बहुत सारा कंप्यूटेशन है, लेकिन आपके कंटेंट में उतना नहीं बोला गया है, ठीक है। और ये आपका जो रियलाइज्ड यील्ड है, ये आपका बेसिकली इंडिकेट करता है दैट इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट करे कि उसको इक्विटी शेयर्स पे मिलेगा करके, ठीक है, तो वो रियलाइज्ड यील्ड मेथड में होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स देखिए आपका ये आपका डिनोशन है D1 by PO plus G multiplied with 1 minus TR again multiplied with 1 minus P, ठीक है, तो D1 मतलब तो डिविडेंड है ही, P मतलब आपका प्राइस है, फाइन। देन G is your growth rate, 1 minus TR is shareholders tax rate और B मतलब brokerage cost, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसके चलते रिटेन्ड अर्निंग्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या होता है, सब कंपोनेंट्स को मिला के उनका जब एवरेजिंग होता है हम कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, लेकिन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग जब वेट्स को लेते हैं, वेट्स मीन्स प्रोपोर्शनेटली कंपेयर किया जाता है, उनका प्रोपोर्शनेटली अमाउंट ऑफ वेट निकाला जाता है, ठीक है, और उसी वेट को जब हम कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ करके बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ वेरियस okay, the components are weighed according to the relative proportions in the total capital, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनेटली हर कंपोनेंट के ऊपर जब वेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा। फॉर्मूला देखिए समझ आएगा, के ई डब्ल्यू ई प्लस के डी डब्ल्यू डी प्लस के पी डब्ल्यू पी, इसका मतलब जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर जब वेट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐड होगा डेप्ट कैपिटल के ऊपर, फिर उसके ऊपर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर भी वो सेम चीज़ें लागू होगा, ठीक है। तो फिर ये तीन जब हम ऐड करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके गलत फहमी है, द मिसकॉन्सेप्शन। फर्स्ट इट इज टोल्ड दैट इट इज इम्प्रैक्टिकल, okay, that's really not viable, fine। next it is equal to dividend rate। जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी डिविडेंड रेट से इक्वल नहीं होता है, ठीक है, we all know it because dividend rate is something else and cost of capital is something else। dividend rate, the decision is it's something that may influence the cost of capital but that can never be equal to cost of capital, fine। next is it is either cost free or less cost in the external equity of, again that's really not expected, fine। external equity से वो कभी कभार ज्यादा ये हो जाता है, समझ रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि एकदम फ्री है, lesser cost है, that's really not accepted। and depreciation has no cost, of course। see, depreciation may be a non-cash expense but that doesn't imply that it is having no cost, okay, that cannot be said, fine। सो ऐसे ही आपके कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग, फाइन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज योर कैपिटल बजटिंग, द नेक्स्ट यूनिट सेज दैट इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म आर अलॉटेड टुवर्ड्स major long-term projects or investment expenditure with an objective to increase the value of the firm and thereby the wealth of the equity shareholder, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब लॉन्ग टर्म एसेट्स पे या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे जो पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है,
विद एन ऑब्जेक्टिव कि फॉर्म का वैल्यू और इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है, तभी उसको कैपिटल बजटिंग करके बोला जाता है, फाइन. इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फाइन, एंड इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. और एक बार आपका ये खर्चा हो जाता है तो आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक. वैसे ही that's why it is irreversible, because when investment, a huge amount of investment is done on a particular asset, you cannot get back the same amount, and you cannot reverse it, ठीक है. It has long term impact on the affairs of the company and determines the futures of the company, of course. Now next is टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है. किस तरह के टाइप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिए जाते हैं. पहला है आपका न्यू प्रोजेक्ट. जाहिर सी बात है, न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या है, जब आप कोई नया बिल्डिंग बनाते हैं, एनी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी न्यू परचेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, सो एवरीथिंग इज समथिंग वेयर द impact, or you can say it influences the capital budgeting decision, fine. Next is expansion projects. Now when I say expansion project, that means what, when you add up what I can say, a new facility or a new range of products or a new line of business or a new infrastructure. So जब भी आप कुछ add करते हैं existing business के साथ, we call it as the expansion projects, fine. So this may be of a smaller size, which will give a faster return, or it will be of a larger size and it will give a little bit slow, but a huge amount of return, fine. So that depends. Next is renewal or innovation. Renewal renovation में आपका होता क्या है, जब आप कोई I mean to say obsolete item, obsolete machinery के ऊपर आप जब खर्चा करते हैं, so that is also a capital budgeting decision, because that involves a huge amount of money. Now when I say exploration projects, of course when you go for oil exploration or exploration of a new line of business, okay, or when you think of opening branches across the globe or country, so that's a kind of exploring, fine. So when you think of exploring, that naturally involves a huge amount of money, and that is what capital budgeting decision involved, fine. नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जाहिर सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज समथिंग जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज बीइंग यूज्ड, फाइन. Next is projects for the compliance of certain statutory requirements. Obviously, statutory requirements मतलब क्या है? See, like when you have to install fire equipment, or like what I can say, let's say where you have to satisfy, or where you have to comply with the environmental standards, or let's say with audit standards, or let's say with reporting standards, and when you are involving an amount for it, fine. Of course, that's not a small amount, fine. That's not at all a small amount. So there it gives rise to the capital budgeting impact on it, fine. Now next is process in the capital budgeting. तो ये जो कैपिटल बजटिंग है, इसमें आपका प्रोसेस भी है, ठीक है. मतलब क्या क्या स्टेजेस से गुजर के आपका कैपिटल बजटिंग देखने को मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, पहले आप एक आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा रहेगा. भले ही वो आपका कोई चाय का स्टॉल क्यों ना हो, या फिर गुपचुप का स्टॉल क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा एमएनसी ही क्यों ना हो, फाइन. सो एवरीवेयर देयर इज ए जनरेशन ऑफ आइडिया फर्स्ट. पहले आइडिया जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज वी हैव टू एस्टिमेट द कैश फ्लोज, ठीक है. कोई भी एमएनसी हो, या फिर कोई भी एक किराना स्टोर हो, इट कैन बी ऑफ एनी नेचर ऑफ बिजनेस, वी हैव टू understand, we have to calculate, ठीक है, either with the help of the financial managers or your experts, fine, different experts, the one who will help you to evaluate or to estimate the cash flows. उसके बाद आप उसको evaluate करते हैं, आप calculate करते हैं, ठीक है, कि बराबर से वो ही होगा नहीं होगा, ठीक है. आप evaluate करते हैं whether it is certain or whether we can adjust it, fine, by the help of the marketing expert, by the help of the financial experts, fine. Then इतना सारा एनालिसिस होने के बाद we select finally a project, fine. And after selecting a project, we go for execution and the monitoring, fine. We go for the actual implementation, or actual what I can say, the process where we go for what I can say, seeing that how a particular project is implemented, how a particular project is actually visible in reality, fine. Now next is methods to consider for reducing the risk of uncertainty, ठीक है.
तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, दैट मीन्स क्या होता है, आप इसमें एक रैंडम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की हर एक इनफ्लो पे कितना रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है करके, ठीक है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट में आप क्या करते हैं, आप इस पे एक सर्टन परसेंटेज आप इन्वॉल्व करते हैं कि मान लीजिए अगर पहले साल में 10,000 हुआ तो 10,000 अगले साल, ठीक है, अगले साल अगर 10,000 मिल रहे हैं तो कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा, मान लीजिए 10%, ठीक है, तो आप 10% लागू करते हैं। फिर उसके बाद के साल में मान लीजिए 15,000, तो 15,000 में आप बोल रहे हैं कि हाँ 80%, सॉरी 20% का रिस्क है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप चार्ज करेंगे। थर्ड ईयर में मान लीजिए आप बोलते हैं कि 20,000 आई एम रिसीविंग, फाइन, so on that 20,000 what will be the risk percentage I will be involving, fine, so एक certain rate पे आप क्या है discounted values निकालते हैं, समझ रहे हैं। now next is sorry, now next is risk adjusted discount rate। इसका मतलब क्या है, on basing upon the risk of the project आप उसी हिसाब से डिस्काउंट रेट फिक्स करते हैं। इफ ए प्रोजेक्ट इज हाईली रिस्क वी चार्ज ए हायर डिस्काउंट, फाइन, इफ इट इज ए लो रिस्क देन लो डिस्काउंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप रेट फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें भी वही होता है, ठीक है, आप हर एक इनफ्लो पे एक प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं, ठीक है, दैट आई प्रोबेबल दिस विल बी द रिस्क इन्वॉल्व, आई प्रोबेबल 0.1 और 0.2 0.3 विल बी द परसेंटेज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। आप वही मल्टीप्लाई करके फिर आप वैल्यूएशन करते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है आपका, वेर यू यहाँ पे भी एक आपका क्या है, आप वैल्यूएशन करते हैं जिसमें कि आप हर एक इन्फ्लोस को आप एक सेंसिटिविटी as a variable you take some percentages, fine, that we expect that in the coming year this much will be sensitive, fine, this much amount or this much percentage of sensitiveness is present in the cash inflows, ठीक है। so हर एक चीज में क्या है, एक एक एस्टिमेशन होता है, एक प्रिजम्पशन किया जाता है, ठीक है, हर एक मेथड में। now रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मेथड, ऑफ कोर्स टाइम वैल्यू कंसिडर करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिस्क को देखना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑल्सो दे ऑल्सो टॉक ऑफ द सेम थिंग। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ठीक है। तो मेथड्स में क्या है, सिंपल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। सिंपल मेथड में है पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, साइंटिफिक में एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन दैट इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में क्या होता है, हम लोग जो इन्वेस्ट किए हैं वो ही इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितने साल में हमको मिल रहा है, वेरी सिंपल, इट इज कॉल्ड एज योर पे बैक पीरियड, फाइन। हाउ टू कैलकुलेट, इट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो बाय द एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। हाउ टू नो, see a company has invested 1 lakh on a new proposal where the inflows are 20, 30, 30, 40 and 40,000, fine. So now we have to compute the cumulative cash inflow, 20 का 20 आया, फिर प्लस 30 50, फिर प्लस 30 80, प्लस सॉरी प्लस 40 इट gave us 1,20,000, अगेन 40 इट gave us 1,60,000। हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 1 लाख। देखिए तो 80 और 1,20,000 में आपका 1 लाख गिर रहा है, क्यूमुलेटिव में देख के मालूम चल जाएगा। सो दिस डिफरेंस, ओके, दैट इज 20,000, ठीक है, वो 20,000 हैज टू बी डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट कैश इनफ्लो ऑफ द फोर्थ कमिंग ईयर, जो कि फिफ्थ ईयर में 40,000 है, ठीक है। सो 3 साल में और ये 4 साल के बीच में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 3 + 20/40 जो कि आया 3.5, ठीक है। तो 3.5 ईयर्स में पे बैक पीरियड मिल रहा है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट डज इट से, दैट वेयर वी टेक द प्रॉफिट्स in proportion of the initial investment or average investment, and remember the profits we are taking is the profit after tax, okay। now this is the question where 1 lakh is the investment value, working life is 5 years, then some scrap value is given, then PAT is given, tax rate 40%, fine। so first annual depreciation calculate करना है। so annual depreciation कैसे, your actual value minus the scrap value divided by the number of or the life of the asset, fine।
सो कितना आया 18,000 आया। तो अभी देखिए पहले साल में 1 लाख है, डिप्रिसिएशन आपका होने के बाद 82,000, अगेन डिप्रिसिएशन के बाद 64, देन 46, देन 28, वैल्यू एट द एंड 82, फाइन। ये आपका वैल्यू एट द बिगनिंग है, देन फर्स्ट ईयर के एंड में ये है, सेकेंड ईयर के एंड में 64, थर्ड ईयर के एंड में 46, ऐसे करके दिया गया है। अभी आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। सो ये आपका एवरेज आया, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ठीक है। तो एवरेज आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सो ARR क्या है, इट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, है या नहीं। सो उस हिसाब से आपका 7,000 है एवरेज और 55,000 इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट, फाइन, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे अगर ARR कैलकुलेट होता तो 7,000 बाय 1 लाख होता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने एडजस्टमेंट के बाद का वैल्यूज लिया है, समझ रहे हैं, डिप्रिसिएशन के बाद वाला। तो अगर हम इनिशियल बेस वैल्यू पे लेते तो 60% ARR आता, जबकि हमने नहीं लिया है तो 12% आया, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 13%, फाइन। अभी ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, ये आपका वैल्यू है जो कि डायरेक्टली हम लोग जान सकते हैं कि ये 55 कैसे आया। इनिशियल वैल्यू 1 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 55,000। ये डायरेक्ट मेथड है और ये आपका स्टेप वाइज है, ठीक है। Now coming to the next is scientific method, that is your net present value, ठीक है। net present value is the difference between the present value of inflow and the outflow, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, नेगेटिव होता है तो रिजेक्ट होता है, फाइन। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन, देखिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 80,000 का है और कैश फ्लोस आपका दिया गया है 15,000, 22,000, 27, ठीक है, देन 29, देन 21, फाइन। रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%। फाइंड आउट वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल टू बी एक्सेप्टेड और नॉट, ये आपका फॉर्मूला है, देखिए, ठीक है। A by 1 plus I to the power T minus CO, ठीक है। CO मतलब क्या है, कैश आउटफ्लो, और ये सब आपका है इनफ्लो, समझ रहे हैं। ये जो A by 1 plus I है ये आपका इनफ्लो का फॉर्मूला है, फाइन। व्हेन द इनफ्लोस आर एडजस्टेड विद द डिस्काउंट रेट्स बेसिंग अपॉन द 10%, फाइन। मतलब ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है, समझ रहे हैं। सो 15,000 by 1.1, 22,000 by 1.1 स्क्वायर, इसका मतलब आपका कितना आएगा 1.21, फाइन। सो 27,000 1.1 टू द पावर 3, ऐसे करके होने के बाद फाइनली वैल्यू कितना आता है 4950.5। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि NPV बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो जबकि NPV आपका पॉजिटिव है तो बेझिझक ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट आप लोग कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट इज ये आपका है प्लस पॉइंट्स कि NPV आपका देखिए सिंपल मेथड्स जो आपका पे बैक पीरियड रहा है और अकाउंटिंग रेट, तो वो क्या है, अच्छा है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कैलकुलेट, फाइन। उसमें प्रॉफिट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट मेजर ड्रॉबैक्स आपका क्या है, प्रॉफिट्स आफ्टर द पे बैक पीरियड्स आर नॉट कंसिडर्ड। फिर आपका जो एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे या बिफोर लेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो ये सब जो कन्फ्यूजन्स है वो साइंटिफिक मेथड्स में नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स को डिस्काउंटेड मेथड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है, फिर आफ्टर पे बैक पीरियड जो भी है उसको कंसिडर किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन इसका भी प्रॉब्लम है, लैकुना है। पहला है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएट होता है, वहाँ पे NPV मुश्किल है निकालना। देन अगर लिमिटेड फंड्स है तो NPV का कंप्यूटेशन और डिफरेंट ऑप्शंस में से चुनने का जब सिचुएशन आएगा तब NPV विल फेल टू हेल्प द फाइनेंशियल मैनेजर। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, इट इज ए रेशियो बिटवीन द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो, फाइन। तो अगर ये रेशियो आपका 1 निकला, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर कम आया देन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर NPV पॉजिटिव आया तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपका ग्रेटर देन 1 आना ही है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 अगर आता है तो आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और अगर लेस देन 1 आता है तो रिजेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, जो पहले आपको पॉइंट में बोले थे पहले स्लाइड्स में, ठीक है। सो ये वो रेट है जिसमें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो जब मैच करेगा, ठीक है, उसी रेट को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करके बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका ईयर से और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे दिया गया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एनपीवी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनपीवी हम लोग निकाल सकते हैं जहाँ पे a बाय 1 प्लस आई टू द पावर टी है, ठीक है, माइनस आउटफ्लो 1200 ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। तो एनपीवी कितना आया? 41.58, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक 11 और 12% का हम लोग देखते हैं कि कितना एनपीवी आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल साइकोलॉजी या फिर एक नॉर्मल प्रिडिक्शन आप लेते हैं, एक एजम्पशन पे आप 11-12 लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है जब हम लोगों को चेक करना होता है कि कौन से रेट में इनफ्लोस और आउटफ्लो टैली करेंगे, ठीक। तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा व्हेन वी आर अबाउट टू कैलकुलेट योर IRR, ठीक है, the two values between which where we expect that IRR will fall, there the two values of NPV, ठीक है, जो दो वैल्यू के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IRR आएगा करके, तो वो जो दो वैल्यूज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना कंपलसरी है। हमेशा याद रखिए हम लोग तब तक आई मीन टू से डिस्काउंट निकालते रहेंगे, ठीक है, जब तक एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव एनपीवी नहीं आ जाता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 11% पे एनपीवी पॉजिटिव है और 12% पे एनपीवी नेगेटिव है। इसका मतलब यकीनन 11 और 12 के बीच में ही आईआरआर फॉल करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस आपका कितना है? 11% है। उसके बाद आपका जो डिफरेंस है, समझ रहे हैं, पहले का 11% पे कितना आया? 12.76, देन डिवाइडेड बाय योर बोथ वैल्यू, ठीक है, सॉरी द डिफरेंस ऑफ द बोथ वैल्यू, समझ रहे हैं। सो 12.76 माइनस द वैल्यू ऑफ एनपीवी एट 12%, ठीक है। तो जिसके चलते दोनों ऐड हो गया, समझ रहे हैं। सो फाइनल वैल्यू कितना आया? 11.34%, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा दो एनपीवी जो वैल्यूज के बीच में आईआरआर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, जिसके चलते वी गेट ए स्ट्रॉन्ग नोशन दैट यस वी आर करेक्ट इन आवर कंप्यूटेशन, फाइन। So now coming to the last concept of your unit is your capital rationing, fine। अभी capital rationing के बारे में क्या बोले? It is a technique of selecting the projects that maximize the firm value where the capital infusion is restricted। जब कंपनी में कैपिटल रेस करना मुश्किल हो जाता है तो जितना भी ऑप्शन है उसी में से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा प्रोजेक्ट वाइबल है, कौन सा इम्प्रैक्टिकल है। देयर कैपिटल रशनिंग मेथड इज हेल्पफुल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवेलेबल कैपिटल among the various investment proposals in such a manner that the firm achieve maximum increase in its value, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बारी बारी से हर एक आई मीन टू से प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट आई कैन से डिफरेंट टेक्निक्स, फाइन। फिर उनको रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग करने के बाद फिर हम बोलते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, ये रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व देखिए लिखा गया है, वी हैव टू एवेलुएट द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी, आईआरआर और पीआई, ठीक है। आइदर आप एनपीवी कर सकते हैं, आईआरआर कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड करके हम लोग पहले इवेलुएट करेंगे, ठीक है। इवेलुएट करने के बाद फिर हम उसको रैंक करेंगे ऑन द अबव टेक्निक्स। अगर एनपीवी हमने बेस लिया है तो हम तीनों प्रोजेक्ट्स का हम कंपेयर करके देखेंगे किसका एनपीवी ज़्यादा है, समझ रहे हैं, तो उसको पहला रैंक देंगे। अगर आईआरआर होगा तो उस हिसाब से रैंकिंग करेंगे, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट इज सिलेक्ट द प्रोजेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टिल द कैपिटल एग्जॉस्ट, मतलब बड़े से लेके छोटे तक हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। एंड देन आफ्टर कंपेयरिंग विथ एनपीवीज वी फाइनली सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, फाइन।
तो ये जो रैशनिंग होता है ये दो तरीके से रैशनिंग होता है। पहला एक हार्ड कैपिटल होता है, एक सॉफ्ट कैपिटल होता है, ठीक है। अब इस हार्ड कैपिटल मतलब जहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत लिमिटेड होता है। सॉफ्ट कैपिटल मतलब जब मैनेजमेंट बोलता है कि आपको इसी में से ही एडजस्ट करना है, समझ रहे, where the restriction is imposed not by the external resources but by the management itself, by the company itself, ठीक है, तब हम उसको सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग करके बोलते हैं। देन लास्ट आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेजेस देखिए, एक तो कैपिटल रैशनिंग आपको हेल्प करता है एक सेंस ऑफ बजटिंग, ओके, इट हेल्प्स यू to have a sense of preparedness, to prepare a budget so that we can ऑप्टिमाइज आवर एलोकेशन ऑफ द फंड्स, फाइन, नो वेस्टेज। जाहिर सी बात है, जब हम हर एक प्रोजेक्ट को बारीकी से चेक करते हैं, ठीक है, we can understand that yes, where to invest, how much to invest, where not to invest। as a result क्या होता है, वेस्टेज कंट्रोल होता है। फ्यूअर प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है, वही प्रोजेक्ट्स पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या फिर वही प्रोजेक्ट्स हम लोग लेंगे जो कि वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा और जो वेल्थ एनहांसमेंट में हेल्प करेगा, जिसके चलते कम प्रोजेक्ट्स रहने से मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा, ठीक है। हायर रिटर्न्स, जाहिर सी बात है, इफ यू गो ऑन फॉर एलिमिनेटिंग द प्रोजेक्ट्स विथ लोअर रिटर्न्स ऑन कैपिटल, वी कैन थिंक ऑफ रिसीविंग हायर रिटर्न, फाइन। अननेसेसरली हम अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर ले लेते हैं ये सोच के कि हाँ हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा, उसके चलते क्या होता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, कंट्रोल में प्रॉब्लम होता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एट लास्ट आपका रिटर्न सिवियरली इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन वेयर ऑल द अबव पॉइंट्स आर appropriately utilized or executed, it leads to more stability and increase or enhancement in the stock prices of the company, fine। लेकिन साथों साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आता है निकल के। पहला है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट का जो थ्योरी है वो आपका वाउलेट, आई मीन टू से वाउलेट होता है, ठीक है। तो अभी कैपिटल मार्केट थ्योरी क्यों वाउलेट होगा, बिकॉज सी no doubt we say that ranking of the projects is very easy by basing upon your NPV or IRR, but see practically it's not possible, ठीक है। practically आप रैंकिंग करना, ठीक है, मेजर करना, उस हिसाब से करना, बट at certain point of time after 1 year or 2 year situation may change, market may change, fine। this COVID pandemic, the entry of such a situation was never at all expected by the Indian economy, fine। so वो आपका है where the capital market changes, the situation of the market changes, economy is devastated, forget about the company's capital structure or the company's management। तो वही हाल है। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है, if there is a miscalculation then that will result in selecting a less profitable project। जाहिर सी बात है, देखिए हम लोग जो भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो एक एस्टिमेशन पे कर रहे हैं, और एस्टिमेशन पे किया हुआ चीज़ें हमेशा रियलिस्टिक होगा या फिर हमेशा पॉसिबल आउटकम्स देगा, ये एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है, समझ रहे हैं। तो उसके चलते क्या होता है, थोड़ा मिसकैलकुलेशन होता ही है, और अगर वो मिसकैलकुलेशन अगर करोड़ों का है, ठीक है, इन दैट केस आपको उसी हिसाब से लॉस भी बियर करना पड़ेगा। देन NPV is not always maximizes the wealth of the shareholders। जाहिर सी बात है, ठीक है, whole of these concepts are involved in estimation only, fine। so that will never be exact in the future times to come। Small projects may lead to selection of the capital rationing may lead to selection of small projects। तो जाहिर सी बात है ये भी होने का चांसेस है, ठीक है। then next is intermediate cash flows। intermediate cash flows means it does not add intermediate cash flows from a project while evaluating the projects। जाहिर सी बात है, ये वैसा किस्सा है कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप किसी को सुनते नहीं हैं, समझ रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है आपके अगल बगल, आप ध्यान नहीं देते। इट इज सच काइंड ऑफ सिचुएशन, फाइन। सो व्हेन वी आर evaluating certain number of projects, okay, we ignore the intermediate cash flows from
the current projects. Fine. So as a result, what happened? We are leaving aside the possible benefits or the possible amount of returns for the company. ठीक है. तो इसके चलते क्या होता है, ये आपके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं. बट ओवरऑल इफ वी कैन से कैपिटल रेशनिंग इज अ मेथड that do help to a certain extent to the company, okay, to select a particular project, fine, and reject the less profitable and less income generating proposals for the company, fine. So that's all from my side for your unit 2 covering investment decisions, sorry, your block 2 covering investment decisions. Thank you, everyone. Anything else to be asked?